जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टर में। और मेरे इस पॉडकास्ट में जिसको मैं बोलता हूँ टॉक विद द लीजेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अमित सर के साथ। कर्नल अमित कुमार सर हैज बीन इन एक्स एनडीए, एक्स आईएमए, इंडियन आर्मी एविएटर एंड अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। Yeah, Shivam, so nice to see you. लाइकवाइज सर, लाइकवाइज, ग्लैड टू सी यू अगेन सर। थोड़ा सा मेरा ना सेटअप थोड़ा सा ऑड है, आई हैड टू ट्रेवल ऑन इमरजेंसी बेसिस, तो उस वजह से बट पॉडकास्ट करना था। दिस वाज मच अवेटेड, किड्स वर वेटिंग फॉर इट। तो है वी Yeah, yeah. तो सर वेलकम एंड Thank you very much, sir. this session that we have planned, and on behalf of my whole team of defense exam master and all the kids here who are under my mentorship, I would like to welcome you here. And आज सर मैं बहुत ही कैंडिड सा कन्वर्सेशन करने वाला हूँ। कोई ऐसा Okay. पॉडकास्ट ऐसा कुछ सोच नहीं रखा, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू जो कि इन बच्चों के काम में आने वाली हैं। तो उसी से मैं Okay. स्टार्ट करूंगा सर। सबसे पहले कि Mm. व्हाट मेड यू जॉइन, यू हैव बीन इन एक्स एनडीए, रिमकोलियन भी हो आप, तो मतलब व्हाट मेड यू जॉइन आरआईएमसी? मतलब ऐसा क्या हुआ लाइफ में, क्या इंस्टेंस था जिसकी वजह से आपका ना फौज की तरफ रुझान बना सर? Mm-hmm. I mean, for me, since my first childhood memory, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फौज ही ज्वाइन करना था. I have a photograph when I was about, I think 4.5 years old. Zubeen Mehta, for the first time, had come to Mumbai and done a concert which was being, uh, you know, telecast on TV. And उसमें he played the national anthem. And I had that spirit of patriotism so much that I stood up and I was saluting, and I was saluting like a naval, whatever I had seen in movies and all. I don't remember now. इतना छोटा था मैं. So that is my first memory, and it was always there. I mean, I had to join Forge. So uh, I was in a small town called Pratapgarh. My father was working there, though I'm from Kerala, but my father was there. So I'm like almost born and brought up in UP. And then my father said that, why don't you join Sainik school? So I was fine. I took the exam and by God's grace, I passed. So I joined Sainik school Lucknow. I was there for 1 year. And during that Sainik school Lucknow, first year in class 7th, when we joined, there is a thing called UP Darshan. All the first year kids are taken, class 7 kids are taken. So when they went, our principal that time was from Air Force and he said that you must go and have a look at RIMC. So at that time, as a kid in class 7th, I had no idea what is RIMC. But I saw RIMC and I was very impressed because it looked very different from anything that I had seen. And I just told my father about it. उस टाइम मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे. I had no idea. One day my father just showed up in Sainik school. Lucknow and Pratapgarh is not very far. So he came and gave me the papers कि ये रहे RIMC के सैम्पल पेपर्स. एक महीने बाद एग्जाम है और तुम एग्जाम के लिए चले जाना. And we then he came after a month and I went for the exam. Whatever little bit I had seen, an RMC interview and exam was totally different, but I got through. So by God's grace, that career was set for army. यू सेटल योर करियर एट द एज ऑफ लाइक फिफ्थ सिक्स्थ में। हम तो सोच भी नहीं सकते आगे क्या करना है, मेरे दिमाग में आता भी नहीं यार हम करेंगे क्या आगे जाके। It was जज्बा था, and it took me imagine from class 7th till राइट। almost till now. I've been in Fauj till this year, so it's been more than a journey of what 1989 I joined, and it is so about 34 years, 33, 34 years. राइट। थोड़ा सा सर मैं यहाँ पे, जैसे आरआईएमसी के बारे में पहली बार ही मैं बात कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट पे, थोड़ा सा मैं आरआईएमसी के बारे में जानना चाहूंगा। बच्चों को मैं बता दूं, जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अब कुछ लिमिटेड ही है देश में। सैनिक स्कूल्स जैसे काफी सारे सैनिक स्कूल्स हैं, उस तरीके से आरआईएमसी उतने सारे नहीं है। आरआईएमसी आर वेरी लिमिटेड, मतलब जो बच्चा सैनिक स्कूल का भी क्रीम है ना, सैनिक स्कूल की क्रीम जाएगी आरआईएमसी। फिर एक अ, आप मान सकते हो कि कुछ ही चुनिंदा अमाउंट में सैनिक स्कूल हैं। तो सर मतलब एक उस क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में थे जो कि एकदम क्लास अपार्ट हो गए, मतलब पढ़ाई में अच्छे थे आप। तो थोड़ा सा आरआईएमसी के किस्से सर बताएं। थोड़ा बहुत ठीक है मैंने. And RMC is only one. There is no other. There is no second branch. Sainik school तो हमारे time पे when I was young there were 18 of them. Now they have increased. I don't remember the number, but they've gone above 23, 24 now, maybe even more. There are military schools also, 5 of them, but RMC is only one. It was started in 1922 for sending the making first time Indian officers in the British Army. पहले British Army में केवल JCOs और जवान इंडियन होते थे और ऑफिसर सारे ब्रिटिश होते थे. राइट So to सर। make it first time they started after World War One, this was a demand from everyone.
इवन फ्रॉम विद इन द ब्रिटिश आर्मी. सो दे स्टार्टेड इन 1922. एंड उस टाइम पे एक साल की ट्रेनिंग के बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यूज्ड टू बी सेंट टू ऑल दी मेजर अकेडमीज इन ब्रिटेन to get trained and become officers. But then 1932 IMA came up, so we started sending people to IMA directly. And then when NDA came up in 1949, when the JSW came up, Joint Services Wing, the precursor of NDA, we started sending people to JSW and then later to NDA. It is only for 5 years from 8th to 12th. एंड उसमें टाइट इसलिए हो जाता है थोड़ा आरआईएमसी बिकॉज हर स्टेट से एक या दो वैकेंसी टाइप ऐसे हैं डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन. व्हेन आई हैड जॉइंड इन 1990, उत्तराखंड वाज नॉट देयर, सो यूपी वाज, आई मीन, बिग. So we had 3 vacancies from UP, and from entire northeastern states, like there was one, 3, 4 smaller states were clubbed for one. Karnataka had two, Kerala had one. That way, you have state-wise vacancies. So RMC थोड़ा सा exclusive हो जाता है. हाँ, पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, but it has been worth it. तो वी कैन इमेजिन, जैसे जो बच्चे इसको देख रहे हैं ना, सर को देख के आपको ये समझना चाहिए, मतलब इंस्पिरेशन आपको ये लेनी चाहिए कि सर पढ़ने में अच्छे थे भाई. तो सर वाज गुड एट स्टडी एंड आई थिंक सर दैट आई व्हेन आई मेट यू ना, जब हम मिले थे उस दिन, तो दैट आई कैन फील दैट थिंग ना, कि यू वर स्टूडियोस काइंड ऑफ अ गाय. एंड सर फ्लाइंग में आप हो तो ऑब्वियसली पढ़ना तो बहुत पड़ेगा भाई. एंड देन दैट बेसिकली दैट फाउंडेशन वाज बिल्ट इन आरआईएमसी आई गेस. तो Yes, yes. तो आरएमसी इज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन, एंड जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको. छोटे बच्चे पर्टिकुलरली जो भी इसको देखेंगे, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. ओनली वन इज देयर, देन फिर आरएमएससी भी हो जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री. Yeah, that's military school, Rashtriya Military School, so RMS बोलते आरएमएस बोलते हैं, वो भी हो जाता है, बट आरआईएमसी वन है. एंड जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है स्पेसिफिकली, आर यू सैनिक स्कूल और आरआईएमसी स्टूडेंट, वो डेडिकेटेडली वहाँ पे एक लाइन लगी होती है. हैं. एंड सर आपके स्कूल से काफी सारे लोग रहे होंगे जो अभी सर्विंग में होंगे, काफी ऑफिसर्स बनते हैं आरआईएमसी से. तो most of the people Hmm. join the cause because RIMC and Yeah, Sainik schools act as a feeder for NDA. It act as a exactly, feeder for NDA. So most exactly. of the people get inside. So that is. Yes. तो सर अगला अगला सवाल मेरा आता है कि आरआईएमसी आपने किया, फिर अ, उसकी पढ़ाई जो आपने करी थी आरआईएमसी से, जो आपको लर्निंग्स मिली, उस लर्निंग से आई थिंक आपको हेल्प हुआ होगा, आपने एनडीए क्रैक किया, अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया. देन फिर Yeah, आपके एसएसबी इंटरव्यू हुई होगी. तो आपका yeah. एसएसबी इंटरव्यू का कोई किस्सा है ऐसा, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ? हाउ हाउ वाज योर एसएसबी एंड कहाँ से आप रिकमेंड हुए थे? SSB, I took my SSB in 1995 in Allahabad, and that time Allahabad used to be known as rejection center हमारे time. So I've heard कि वहाँ पे 100 लोगों का बैच गया और पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया. वहाँ हैं भी 4 SSB. उस टाइम की बात बता रहा हूँ, not right now. I don't know now. I have not been current with SSB. अभी 5 But ऐसे. SSB was, I remember, four days of lot of fun. We had a lot of fun. एंड मुझे इतना याद है कि मुझे बिल्कुल नाम वाम तो पता नहीं है उस टाइम पे जीटीओ कौन थे वो नाम तो बताते नहीं है. बट जीटीओ केवल रिबन लगा करके और ऐसे करके ऐसे ऐसे बैठ करके एक तरफ देख ही रहे थे बस हम लोग को. मुझे लग रहा था घूर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पास करेंगे फेल करेंगे, पता नहीं. सो एनीवे एसएसबी इवेंट ऑफ क्वाइट गुड, मतलब मुझे तो अच्छा लगा. बट एसएसबी का किसी को पता नहीं होता है कि कब फेल हो गए कब पास हो गए. यू फील द इंटरव्यू इज गॉन वेल, यू फील एवरीथिंग इज गॉन वेल, बट सो आई when we sat down for our result declaration, that was the best. सबसे पहले तो वो ऑफिसर जो आए थे उन्होंने हमारे साथ बहुत खेला, मतलब आधे घंटे 40 मिनट उन्होंने हमारे साथ खेला. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी दैट आई हैव. ही सेड कि पहले अमिताभ बच्चन भी पास नहीं हुए और एपीजे अब्दुल कलाम, वो सब स्टैंडर्ड आई थिंक बोलते हैं जो हम्म. रिजल्ट अनाउंस करते हैं. उसके Right. बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा आप में से अगर केवल एक लड़का पास हो तो वो कौन होगा. So they were murmurs and things, and then started people. So मेरा एक coursemate है Jai Singh Shekhawat. He's right now posted in Jalandhar. He's also a colonel in the army air defense से. So हम सब ने उसका chest number बोला. If I'm not wrong, I think he was chest number 4 या 5. I don't remember now. तो उसका बोला तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने अपनी पेपर खोला ऐसे, बोला चेस्ट नंबर 4. फिर इधर उधर देखा, हाँ हाँ ही इज देयर. तो इस तरीके से 4 लोग पास हुए थे टोटल बैच में से. आई थिंक हम 28 या 30 लड़के थे, 4 लोग पास हुए थे. तो सेकंड मेरा था, थर्ड किसी और का, फोर्थ. तो ऐसे करते हुए एंड देन वी हैड अ ग्रेट टाइम बिकॉज ऐसे ही पास हो जाए तो देन इट बिकम्स मोर मेमोरेबल. देन द मेडिकल आल्सो क्वाइट मेमोरेबल. तो Nice. आई थिंक ओवरऑल इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इन माय लाइफ. तो हाउ वाज लाइफ आफ्टर, मतलब
गेटिंग रिकमेंडेड, फिर आप एनडीए गए, तो घर पे कैसा माहौल था उस जमाने में? मतलब उस जमाने में तो सर, अभी तो बच्चों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था। मतलब आप ऑलरेडी उस तरीके के माहौल में थे, बट हाउ वाज द फीलिंग एट होम कि यू क्लियर्ड एनडीए एंड? Actually, my parents, I am the lone child, so my parents were very close that way. So we had relatives in Allahabad, right next to the SSB center. वो उस टाइम जज थे हाई कोर्ट में, तो मेरी मम्मी के फर्स्ट कजन ही थे। तो वो उनके घर आकर के रुक गए थे। तो मैं जब एसएसबी से शाम को निकलता था, बिकॉज आपको जाने को मिलता है बाहर, मैं हम्म। शाम को निकलता था तो मैं पहले घर जाकर के उन लोगों को मिलता था। दे वर वेरी, आई कैन टेल यू दिस मच दैट नाउ नाउ आई हैव अ सन हु इज इन क्लास 12th एंड ही इज गोइंग टू बी लुकिंग फॉर हिज करियर, सो नाउ आई कैन आइडेंटिफाई दैट माय पेरेंट्स वर वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी, मतलब वो बड़े आतुर थे मेरा रिजल्ट्स जानने के लिए कि क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, कल क्या होगा, इस तरीके से। So that support was always there with me. It was a very good thing for me. राइट। आजकल वही चीज फोन या मोबाइल पे हो जाती है। That time phones and mobiles and video calls were not possible. So at least they were there right next door for me. So that was a good thing. राइट सर, राइट सर। तो अभी अभी सर जाते हैं थोड़ा सा ना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरफ। एनडीए की पीओपी है 30 तारीख को, अभी लाइक 30 मई 144th कोर्स का पासिंग आउट परेड भी हो रहा है एनडीए में। आप एनडीए के किस कोर्स से हैं, एंड देन एनडीए की लाइफ आपकी कैसी रही? हाउ वाज योर एनडीए टेन्योर सर? हाउ वाज इट? एंड थोड़ा सा ना रगड़ा की स्टोरी भी बताना अगर आपकी कुछ यादें हैं तो। So I'm from 95 course, 95th Charlie Squad, and we joined in January of 1996. And it was, I mean, when you are from RIMC, जब आप RIMC से जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सब पता है, हम्म। बिकॉज आरएमसी में इतना ज्यादा सोचते हैं इंडिया के बारे में। वहां पे इनफैक्ट आरएमसी में यू वोंट बिलीव देयर इज एन एनडीए गॉड ऑल्सो। एक जगह है जिसको एनडीए गॉड का नाम दिया है। और जब हम लोग रिटर्न के लिए, जब एसएसबी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे काफी प्रेयर्स नहीं, हमारे यहाँ तो पुशअप्स वुशअप्स का ट्रेडिशन है, तो वहाँ काफी पुशअप्स और ये सब करके जाते हैं कि भाई भगवान को हमने अपना नतमस्तक हो गए हैं, जा करके इंडिया का एग्जाम दें। सो वेन एवर एनीबडी वुड कम फ्रॉम आईएमए, जीसीस वगैरह जो आते हैं, हम उनसे उनसे हमेशा यही पूछते थे कि सर इंडिया में क्या होता है, कैसा होता है, ये क्या होता है। सो दो तीन मेमोरीज मेरी एनडीए की बहुत अच्छी है। सबसे पहला तो एनडीए में पहुंच करके मुझे ये लगा कि मुझे पता नहीं था कि एनडीए एनडीए इज टफ इवन फॉर समबडी फ्रॉम आरएमसी। बिकॉज आरएमसी में क्या होता है, आपका फिर भी एक थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर इसलिए है क्योंकि सीनियर्स वगैरह आपको काफी चीजें सिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं। बट इन एनडीए ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं सिखा रहे हैं, बट वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑन है, आपका मेरिट काउंट होना शुरू हो जाता है। सो इट इज अ लिटिल ऑन द टफर साइड। आई डोंट वांट टू पुट दी, मतलब किड्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हो टफ जगह, ऐसा नहीं है। इट इज टफ व्हाई, बिकॉज यू हैव टू कीप अप विद द रूटीन ऑन अ डेली बेसिस। यू हैव टू कीप अप विद दी, बिकॉज इंस्ट्रक्टर्स वगैरह अब आपको ये नहीं देखते, वो जानते नहीं हैं आपको 4-5 साल से, जैसे आरएमसी में था वो आपको जानते हैं 4-5 साल से, वैसा नहीं। सो दे नीड टू सी दैट विलिंगनेस फ्रॉम यू टू लर्न एंड रेडीनेस टू सोक इन द एंटायर एनडीए का जो इथॉस और कल्चर है, उसको सोक इन करने के लिए। बाकी एनडीए ऐसी जगह है कि वो, मतलब इट्स लाइक अ, यू नो आई शुड कॉल इट मे बी अ ट्रेन और समथिंग, कि जिसमें आप एक बार बैठ गए तो फिर तो पहुंच तो जाओगे आप गंतव्य तक, बट आपको बस पहुंचने के लिए आप में वो चेष्टा और मतलब कोशिश होनी चाहिए, दैट इज द थिंग। So a lot of things you learn swimming, you learn PT, you learn horse riding, you learn so many new things. So मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज था, हम लोग आरएमसी में कुछ कुछ करके आए थे, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यू। सो दैट इज वन थिंग आई रिमेम्बर। इंटरेस्टिंग स्टफ, पनिशमेंट सबसे ज्यादा याद होते हैं वहाँ पे, क्योंकि पनिशमेंट्स रोज होते हैं। एनडीए लाइफ एटलीस्ट हमारे टाइम पे, आई डोंट रियली नो नाउ, बिकॉज मैं बस एक बार बीच में एनडीए गया हूँ पिछले साल अपने बेटे को दिखाने के लिए। आफ्टर पासिंग आउट इन 1998 दिसंबर, वी आर गोइंग दिस ईयर नाउ इन दिसंबर, बिकॉज हमारी सिल्वर जुबली, इस साल 25 साल हो जाएंगे हमें, तो हमारा कोर्स वो सिल्वर जुबली ऑर्गेनाइज करा रहा है। सो हमारे टाइम पे थोड़ा सा पनिशमेंट्स वगैरह होते थे, मतलब जो दिनचर्या थी, मॉर्निंग में उठो जल्दी जल्दी, जाओ तैयार हो, एक मस्टर करके फॉलन होता है, वहाँ पे सारे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे सबकी ड्रेस वगैरह चेक होती है, जो स्पॉन्ड के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सिक्सटमर्स जो सिनेमोस होते हैं वो चेक करते हैं। फिर आप अपनी जो भी 2 पीरियड होते हैं सुबह के, ड्रिल, पीटी या हॉर्स राइडिंग, मतलब जो आउटडोर टाइप जो होते हैं वो होते हैं मॉर्निंग में। तो ड्रिल जाओ, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में ड्रिल करो, उसके बाद में वहीं क्यूएम फोर्ट में चेंज करो, अपने सैचल में सारा सामान लेकर के साइकिल के ऊपर वहीं पे चेंज करके पीटी के लिए भागो, फिर वहां से वापस आओ। आधा घंटा या 25 मिनट ऐसे मिलता है आपको जल्दी से जल्दी चेंज करके, देन यू गो फॉर ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट और क्लासेस के बीच में भी कोई ना कोई सार्जेंट पकड़ लेगा, थोड़ा बहुत वहां पे रगड़ा हो जाएगा।
एंड देन आफ्टर दैट एज सुन एज यू कम आफ्टर लंच क्लासेस लंच, अगेन कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेशन चल रहा होगा, अगर कोई रगड़ा नहीं होगा तो लोग पीटी के लिए बुला लेंगे। मतलब आपने लंच खत्म नहीं किया है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में शुरू हो गए। उसके आधे एक घंटे बाद में फिर क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर क्रॉस कंट्री करके आओगे, अगर क्रॉस कंट्री खत्म है तो गेम्स हो जाएंगे, शाम को भी अच्छी खासी पुशअप्स वुशअप्स करके। तो बंदा जब पढ़ने के लिए शाम को बैठता है 6:30 पे या 6 o'clock पे, प्रेप्स जिसको बोलते हैं स्टडी पीरियड, एकदम नींद से बुरी तरह, मतलब डाउन विद स्लीप एंड प्लस भूख लग रही होती है इतनी बुरी तरह। तो हम लोग थोड़े डोनट्स वगैरह बेकरी से लाके छुपाते थे, कोई खाता हुआ पकड़ा जाता था फिर पनिशमेंट हो जाता था। तो योर बॉडी बिकम्स सो टफ, यू आर एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ फिजिकल दिस थिंग, एंड यू आर एबल टू ईट एज मच एज पॉसिबल। मैंने मतलब आरआईएमसी में मैंने एक बार में 18 भटूरे खाए हुए हैं। ठीक है, एनडीए की तो मतलब गिनो ही नहीं, इतनी सारी चीजें हम लोग बस खाते पीते रहते हैं। इट डजेंट मतलब सो इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। बट द गुड पार्ट, मतलब फॉर द किड्स टू नो इज, as you progress from first term to second term to third term, gradually you start gaining that confidence. Your bearing starts to come. You start walking straight, and you never, आप कभी slouch नहीं करेंगे, आप कभी एक पैर पे खड़े नहीं होंगे, कितने भी आप थके हो। वो अपने आप धीरे धीरे ना अपनी बॉडी में आने लगता है, अपने सबकॉन्शियस में आने लगता है। सो राइट। दैट इज समथिंग विच इंडिया रियली चेंजेस इन यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक एन ऑफिसर अपने आप धीरे धीरे। तो वो कैसे वो करते हैं ट्रेनिंग रेजीम पता नहीं बना करके, यू डोंट रियलाइज इट, बट जब एंड प्रोडक्ट होता है तो आपको लगता है कि हाँ, जब हम 6 टर्म में जब हम पास आउट हो रहे थे अपनी ब्लू पेट्रोल्स में, तो आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली वर्थ, आई मीन, और कोई एकेडमी और कोई करियर आपको वो दे नहीं सकता है जो एनडीए या आईएमए से पास आउट होकर के लगता है मिलता है। यस यस। तो बाकी इंटरेस्टिंग आपने पूछा कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो आई मीन व्हाट शुड आई टेल यू, देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सब सबसे एक अच्छा हमारे, नहीं अच्छा तो बहुत था इंडिया में, अच्छा तो बहुत था बिकॉज फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन गए। वी राइट। आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वी स्टिल हैव अ चीताज 95 का एक ग्रुप है। हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से रोज एक दूसरे को छोटी मोटी गालियां वालियां देते रहते हैं। और एक हमारा पूरा 95 कोर्स का पूरा ग्रुप है, उस पर भी चलता रहता है। इनफैक्ट आजकल तो सिल्वर जुबली के लिए बहुत ज्यादा उस पर प्रोग्रेस चल रही है, रोज डिस्कशन हो रहे हैं। So we are very close knit. That is the best part that you get. And you don't meet people for 10, 10, 15 years, but when you suddenly meet them, you realize that you are still, मतलब आप वहीं से शुरू करते हो जहां से आपने छोड़ा था। That is राइट। something which only I think this career can give you. So interesting, एक चीज मतलब ऐसे ऑफ हैंड याद आ रही है, वैसे तो बहुत सारी चीजें, बट हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम पे, ही वाज इन द नेवी, सो ही वाज अ लेफ्टिनेंट, यानी कैप्टन इक्विवेलेंट जो होता है नेवी का, नितिन कपूर। सो आई जस्ट मेट हिम, सो द मेमोरी इज वेरी फ्रेश। अभी अभी मैं उनसे मुंबई में मिला था 2 महीने पहले। सो ही वॉज वेरी टफ एज एन इंस्ट्रक्टर, एंड ही डिवाइज्ड अ पनिशमेंट कॉल्ड कैलिफोर्निया बीचेस। उसमें वो क्या करते थे, हमारा हम लोग पीटी रिग में बैठते थे, तो पीटी रिग में आप ऊपर एक टी शर्ट पहनते हैं और नीचे व्हाइट शॉर्ट्स और नीचे व्हाइट शूज एंड ऑल। सो ही यूज्ड टू से स्ट्रिप, तो आपने सब कुछ निकाल देना था एक्सेप्ट शॉर्ट्स पहने रहते थे आप। सो अपनी सारी टी शर्ट निकल गई, शूज निकल गए, सॉक्स निकल गए। तो देन बटालियन एरिया में टाइल्स होते थे उस टाइम पे, कोटा स्टोन टाइप के टाइल्स। वो हम्म। धूप में जलते हुए होते थे, दोपहर में बुलाते थे उनको लंच के बाद में 1:30-2 बजे, एंड उस पे वो बोलते थे लाई डाउन, बस लेट जाओ। ऐसा जलता है ना पीठ, तो मतलब आपको क्या करना होता था, पीठ आपको ऊपर रखनी होती थी और सर के बल आप लेटते थे, सर और बम, बिकॉज बम पे तो शॉर्ट्स हैं, उस पे आप लेटते थे। फिर थोड़ी देर में सर जलने लगता था, तो आप सर ऊपर करके अपनी हील्स डाउन कर लेते थे। फिर आप थोड़ी देर में हील चलने लगती थी, तो फिर आप हील्स ऊपर करके फिर सर पे आ जाते थे। इट वॉज अमेजिंग पनिशमेंट। कुछ नहीं था, कोई पुशअप्स नहीं करनी थी, कोई भागना नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि भाई कपूर सर कहीं कैलिफोर्निया बीचेस पे ना बुला लें, और उन्हें बुलाना ही होता था किसी ना किसी बात पे। So that is one memory. But otherwise, there are a lot of good memories of India. We had a great time. Camps, जब हम लोग जाते हैं, रन बैक, रोवर्स, इट इज वेरी टफ, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कैंप्स इन द वर्ल्ड। जैसे कैंप रोवर जो फोर्ट टर्म में होता है, आई मीन कुछ आई रिमेम्बर ऐसा कुछ इंसिडेंट था 10-12 साल पहले, यूएस वाले आए थे, यूएस आर्मी वाले, वो रोवर्स करने की कोशिश उन्होंने की थी एंड दे कुड नॉट कंप्लीट इट। सो हम्म। आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ, मतलब हम सारे, anybody who passes out of NDA completes that camp. So that is the kind of metal that is there in Indian Army. So I mean, very good memories and very good learning in India. एनडीए में सर एक सेइंग है ना कि लाइक वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज, एंड Yes, पे खरा उतरता है 100%, 100%। तो वो चीज होती है। बिल्कुल
And I have my बिल्कुल। friends and my batchmates and all who went on to join NDA. They are very tough guys. मतलब comparatively if I talk to you about a direct entry officer who joined through IMA ना, and एक एनडीए वाला बंदा, वो एनडीए वाला अलग से दिख जाता है कि ये एनडीए का है, क्योंकि वो इतना सेटिस्फाइड हुआ है यू ना नो 3 साल। अब अब मेरी 23 ईयर्स सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ, मैं अभी जस्ट पिछले महीने। सो मतलब VRS लिया है मैंने। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, एक्स इंडियंस भी फ्रेंड्स हैं और डायरेक्ट एंट्रीज भी फ्रेंड हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को हाँ या ना नहीं बोलूंगा, बट हाँ, इंडिया में 3 साल में कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है। उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब दिख जाते हैं, मतलब आप महसूस कर सकते हो उनका, मतलब वो जो है ना 3 साल का जो एक्स्ट्रा रहता है। बट ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स। एग्जैक्टली। अब सर एनडीए से थोड़ा सा मूव करेंगे, देन यू ज्वाइन IMA देहरादून। माय डॉग इज आल्सो या इंटरेस्टेड इन योर पॉडकास्ट। सीरियसली। तो आपका आईएमए का टेन्योर कैसा था सर? हाउ वाज योर आईएमए? यू उसके बाद आप आईएमए गए डायरेक्ट, एंड देन फिर आपने एविएशन ज्वाइन किया। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि जब चॉइस ऑफ आर्म्स की बारी आती है तो आपने वो कैसे डिसाइड किया कि मुझे इस यूनिट में जाना है ऐसे? ओके, सो आई एम एक्चुअली XNDA के लिए आई एम एज अ ब्रीज। वो 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं लगता है, बिकॉज जो जो आप सीख रहे हैं वहाँ पे, इट इज़ वेरी वेरी गुड लर्निंग। बिकॉज आर्मी के ज़्यादा टैक्टिक्स वगैरह उसमें वो करते हैं हम लोग। एनडीए में थोड़ा कम होता है, केवल 6 महीने के लिए था हमारे टाइम पे। आई थिंक आजकल उन्होंने तीन तीन टर्म के लिए कर दिया, तो 1.5 साल एनडीए में अब सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले सर्विस सब्जेक्ट्स केवल 6 टर्म में होते थे हमारे टाइम पे। एंड उसके बाद में IMA में आप ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, बट इट बिकम्स अ ब्रीज आपको, क्योंकि सारे PT टेस्ट, सारे स्विमिंग विमिंग के टेस्ट, ये सब आप ऑलरेडी एनडीए में कर चुके होते हैं। सो यू रियली डोंट फील एनी प्रेशर। हाँ जी। इंडिया में हर टर्म में बढ़ता रहता है, जो PT का और स्विमिंग का और हॉर्स राइडिंग का, सारे लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। बट दोज लेवल्स आर सिमिलर इन IMA, सो इट इज नॉट मच ऑफ अ डिफिकल्टी इन IMA। सो दैट वे IMA वाज गुड, बट लॉट ऑफ गुड लर्निंग, बिकॉज टैक्टिक्स सारे आप वहीं पे सीखते हो, एक एक ऑपरेशंस, कॉर्डन एंड सर्च कैसे होगा, या रोड ओपनिंग कैसे होगी, या एम्बुश कैसे लगाते हैं, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, वो एक एक चीज सीखते हैं, उसकी काफी प्रैक्टिस होती है। सो दैट वे IMA इज लॉट ऑफ लर्निंग। एंड IMA का मुझे एक चीज याद है, ऑब्स्टिकल कोर्स वाज वेरी गुड। IMA का ऑब्स्टिकल कोर्स इज अ रशियन ऑब्स्टिकल कोर्स, और वहाँ पे एक कंपटीशन होता है, OT बोल के, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग OT कंपटीशन। सो दैट इज अ वेरी वेरी, आई वुड से, प्रेस्टिजियस कंपटीशन। लॉट ऑफ पीपल, मतलब एवरीबडी हैज टू टेक पार्ट। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कुछ लोग पार्ट लेते हैं, टीम बनती है, ऐसा नहीं। सब कोई एक कंपनी के कोर्स के सब लोग एक साथ भागते हैं, एंड इट्स अ वेरी टफ ऑब्स्टिकल कोर्स उसको करना। सो दैट आई रिमेंबर, इट वाज अ वेरी गुड चैलेंज एंड वेरी वेरी invigorating to a young mind at that point of time, that how to tackle it and how to tackle it as a team। जो वीक वाले हैं उनको कैसे आगे लेकर के जाना है, ये सब करना है। फिर ड्रिल, अपनी परेड, POP, आप पास आउट होने वाले हैं, आपको स्टार लगने वाले हैं। तो वो तो एक IMA की, मतलब जो फीलिंग है वो और अलग है, मतलब एनडीए से। बिकॉज यू कीप ऑन फीलिंग दैट थिंग कमिंग क्लोज, कि अब मैं लेफ्टिनेंट बनने वाला हूँ। एंड जो आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं, वो NCOs होते हैं, बट दे टेल यू दैट आपको स्टार तो लग जाएंगे, बट पीपल विल ओनली सल्यूट द स्टार्स, पीपल विल नॉट सल्यूट यू। It's when you start earning their respect, they actually start saluting you as a man, and not the stars alone. So those kind of lessons you get to learn only in IMA, which is a very good thing. Choice of arms was very difficult. मैं बहुत कभी इन्फेंट्री सोचता था, कभी आर्मर्ड सोचता था, कभी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सोचता था। फिर मैंने आर्टिलरी चूज करी, क्योंकि मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने उस टाइम पे, मैंने उनको बोला कि सर मुझे बाद में जाके, एक्चुअली हमारे टाइम पे 1999 में आई गॉट कमीशन। उस टाइम पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती थी आर्मी एविएशन में, यू हैड टू गो थ्रू सम आर्म। पहले आर्म ज्वाइन करते थे आप, उसके फिर 2 साल बाद ही आप ऑप्ट कर सकते थे। सो आई आस्क्ड हिम कि सर मुझे आर्मी एविएशन ज्वाइन करना है, मेरे को पायलट बनना है, मैं कैसे क्या ज्वाइन करना चाहिए? तो देन ही टोल्ड मी कि सिंपली ज्वाइन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं आर्मी एविएशन में। एंड आई ज्वाइन आर्टिलरी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। आर्टिलरी से मैंने फिर ऑप्शन दिया और मैं एविएशन में आ गया। सो दैट वाज द दैट वाज द रीजन, एंड दैट वाज द जर्नी। सो द टाइम स्पेंट इन आर्टिलरी वाज आल्सो गुड, एंड लेटर ऑन इन आर्मी एविएशन वाज इवन इवन बेटर। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एट ऑल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी से रिलेट करता हुआ आएगा मेरा, कि आर्टिलरी में आपने सर्व किया, देन यू ज्वाइन द एविएशन। तो हाउ वाज लाइक कि उस टाइम पे ना आर्मी एविएशन में, अगर मैं थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहूँ यहाँ पे, तो आर्मी एविएशन इज द वन कोर ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ पे वी आर बेसिकली डीलिंग इन हेलीकॉप्टर्स। तो वी हैव चेतक, चीता, एंड वी हैव ध्रुव्स जिसको ALH बोलते हैं, एंड वी हैव रुद्रा ऑल्सो।
दैट इज ऑल्सो एलएच का वेपनाइज्ड वर्जन। तो दीज आर द एयरक्राफ्ट। तो सर आपने कौन कौन से एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा है, एंड हाउ वाज योर लाइफ, बिकॉज यू आर द फर्स्ट आर्मी एविएटर दैट आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू। तो हाउ वाज योर, हाउ डिड यू फील बीइंग एन आर्मी एविएटर, एंड देन वो उस अपनी पूरी एविएशन जर्नी की जो शुरुआत हुई, जो इनिशियल फेज से फिर ट्रेनिंग, उसके बारे में थोड़ा सा मैं टाइप जानना चाहूंगा सर। देन यू बिकेम अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर आल्सो, आई एम ज्वाइनिंग स्टिल। So joining army aviation is not a little, I mean, it's not easy. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट उतना भी नहीं। हमारे टाइम पे 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी पहले, और उसमें 6 मंथ्स वॉज फिक्स्ड विंग। आप पहले HPT-32 उड़ाते हैं, वो लोगों ने देखा होगा। इट्स गॉट, आई मीन इट्स अ फिक्स्ड विंग विद नोज, नोज कोन के आगे उसमें प्रोपेलर होता है। इट्स अ सिंपल ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब तो वो बंद हो गया है, पर हमारे टाइम पे होता था। तो वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग इन 2003 दिसंबर, आई रिमेम्बर। हमने पहले तो आप ऑप्ट करते हैं आर्मी मिशन की, फिर आपका उसमें बहुत दी 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 प्रोसेस इज नॉट इजी, बिकॉज आप PABT देते हो। मैंने PABT पहले दिया नहीं था, क्योंकि मैंने इलाहाबाद में आर्मी केसेस भी दी थी। तो PABT में बड़ा डर सा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, उसमें अटेम्प्ट ही एक बार होता है। सो PABT हो गया थैंकफुली। फिर इनका मेडिकल इतना ही टफ होता है राइट। कि देर आर सम कोर्समेट्स ऑफ माइन हु एक्चुअली गॉट रिजेक्टेड परमानेंटली। आर्मी में थे बट रिजेक्टेड परमानेंटली फॉर फ्लाइंग। सो वो बेचारे ज्वाइन नहीं कर पाए, दे हैड टू गो बैक टू आर्टिलरी और इन्फेंट्री, जहाँ से भी वो आए थे बेचारे। देन सो 32 फॉर स्टार्टेड द कोर्स। तो 6 मंथ्स का ये HPT-32 का पहले इलाहाबाद में हमारी ट्रेनिंग थी। इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि पहली सेकंड सॉर्टी से ही वो हमें स्पिन सिखाना शुरू कर देते हैं। स्पिन इज एन अनकंट्रोलेबल मनूवर ऑफ द एयरक्राफ्ट। और वो पता नहीं आप लोग ने किसी ने वो पुरानी मूवी देखी है विजेता, यस सर। उसमें एक सीन है जिसमें जिसमें कुणाल कपूर स्पिन में डालता है एयरक्राफ्ट को, एंड इज नॉट एबल टू रिकवर। सो कवर नहीं कर रेडियो पे उसको बोल के, हाँ नहीं कर लेता है एंड में रिकवर, बट थोड़ी देर तक पाता, नहीं कर पाता है। तो काफी वो समय तक बैक ऑफ उसको। द माइंड में, हाँ काफी समय तक नहीं कर पाता है। तो वो बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चल रहा है, यार वो विजेता में उसने रिकवर नहीं कर पाया, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो थोड़ा सा ऐसा डर सा लगता है। बट इट इज वेरी टफ, बिकॉज अगर आपकी 45 मिनट की सॉटी है, तो आपको उसके लिए पिछले दिन करीब 5 से 6 घंटे प्रिपरेशन करनी होती है, एंड साथ साथ ग्राउंड सब्जेक्ट्स अलग से चल रहे होते हैं। फ्लाइंग का प्रेशर भी होता है, सो इट इज टफ। 6 मंथ्स वो क्रॉस किया, फिर 6 मंथ्स आपका बेसिक हेलीकॉप्टर सिखाते हैं हमें हाकिमपेट में, हैदराबाद में। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है एयरफोर्स का, वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग गए फिर नासिक, जो हमारा आर्मी एविएशन का स्कूल है, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, जिसको कैट्स बोलते हैं। फिर वहाँ पे 6 महीने हमें एडवांस कॉम्बैट मनूवर सिखाते हैं, जो हम लोग आर्मी में करते हैं, आर्मी की फ्लाइंग में। सो इन तीनों लेग में आप कभी भी ग्राउंड हो सकते हैं, अगर आप कभी, इफ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द लेवल दैट दे आर आस्किंग यू टू कोप अप। एंड हम लोग 32 स्टार्ट किए थे, जैसे मैंने आपको बताया। 22 को ही विंग्स मिले, 10 हमारे वापस चले गए बीच बीच में ट्रेनिंग से। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फियर इन योर हार्ट की, "ओ, बाप रे, पता नहीं मैं पायलट बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा"। सॉटी चेक सॉटी आती है। एक एक चेक सॉटी जब आप पास करते हैं, तो आपको ना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आप जैसे आकाश पे पहुंच गए हैं। सो दिस लाइक दैट। सो बट 1.5 साल का सफर बहुत अच्छा था, कोर्स बहुत अच्छा गया। वी पास्ड आउट, हमें विंग्स मिले मई 2005 में। 22 लोगों को, हमने अपनी अपनी अलग अलग यूनिट ज्वाइन करी। उस टाइम पे ALH यानी ध्रुव के स्पॉन्ड बहुत कम थे, तो हम ज्यादातर लोग चीता में ही गए। हमारे 22 में से 2 ही लोग गए थे ALH में। तो मैं चीता फ्लाइट में गया था, मीसामारी में। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी फ्लाइंग सीखी। इट वॉज वेरी गुड, बिकॉज पूरी जो हिल्स हैं हिमालयस में आप फ्लाइंग करते हैं, एंड यू गेट टू लर्न द टफेस्ट ऑफ द मनूवर्स जो हिल्स वगैरह में होते हैं चीता के। वहाँ से फिर मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए गया। मैंने आई बिकेम अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, एंड आई जॉइंड यूनिट इन जलंधर, जहाँ पे मैं 2 साल इंस्ट्रक्टर था। काफ़ी सारे प्यूपल्स मेरे, जिनको मैंने सिखाया फ्लाइंग, और बहुत अच्छा टाइम गया वो। एंड लेटर ऑन फिर एविएशन में मैं एग्जामिनर बन गया। एग्जामिनर बनने के बाद में, इनफैक्ट लास्ट पोस्टिंग जहाँ से मैं अभी VRS लेकर के आया हूँ, मैं आर्मी एविएशन का चीफ एग्जामिनर था। और मैंने इसलिए सारे एयरक्राफ्ट जितने भी हैं आर्मी एविएशन में, मैंने सारे फ्लाई किए हैं। ALH Mark 1, ALH Mark 2, ALH Mark 3, Mark 4 जो रुद्रा जिसको बोलते हैं, जो वेपनाइज वर्जन है। चीता चेतक को किए ही हैं। सो मैंने सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर लिए, और उन पे मैं एग्जामिनर भी था। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड सेटिस्फाइंग जर्नी इन आर्मी एविएशन, फ्रॉम 2003 या 4 से, जब हमने फ्लाइंग शुरू कर दी, और 5 में विंग्स मिले, और फाइनली मैं 23 में आई टुक अ VRS एज अ पायलट। इट हैज बीन अ ग्रेट। ओके सर, अमेजिंग अमेजिंग जर्नी इंडीड। यहाँ पे मेरा एक सवाल ना इसी इसी कंटेंट से निकलेगा आपके वाले से, कि व्हाट डिड यू लर्न बीइंग अ लाइक हेलीकॉप्टर पायलट, और बेसिकली बीइंग अ आर्मी पायलट, व्हाट डिड यू लर्न? नो, you learned a lot of things as an officer,
but what did you learn basically being an army aviator? What sets army aviators apart from a normal like officer? Officer तो सर सारे ही अच्छे हैं. Everyone is like master of their own work. If we talk Yeah, about para SF, तो वो अपने फील्ड के खिलाड़ी हैं. आप अपने फील्ड के खिलाड़ी हो. But you are also para. I think para certified also है ना? yeah, yeah. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा. मैंने And मैंने 2002 मतलब आई डिड सर्विस विद माई आर्टिलरी यूनिट फॉर 2.5 years। फिर मेरी फील्ड में पोस्टिंग आ गई थी। एक स्पेशल फोर्सेस हैं पैरा की, उनके साथ हमने मैंने अपनी जंप्स करी थी सरसावा में। सो आई डिड माई पैरा बेसिक देयर एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग वो हेलीकॉप्टर से स्टैटिक लाइन जंप करते थे हम लोग। इट वाज अमेजिंग। एंड द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड about what sets you apart. So, flying is not everybody's cup of tea. It is a difficult proposition because आपकी साइकोमोटर स्किल्स और आपका इंटेलिजेंस दोनों एक साथ हाई होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी साइकोमोटर स्किल्स बहुत हाई होती हैं बट शायद इंटेलिजेंस उतना ग्रेट ना हो। कुछ लोग होते हैं जिनका इंटेलिजेंस बहुत ग्रेट होता है बट साइकोमोटर स्किल्स ना हो। But to become a pilot in the army, you need to have both. So that is one thing. Second thing is, what is the most important thing that I learned was a lot of compassion for our troops from our pilots। मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उन सबसे मैंने ये सीखा कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सॉर्टीज के लिए हम काफी अपना मतलब सारी अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरा लगा देते हैं अगेंस्ट द एलिमेंट्स वी गो टू गेट अ कैजुअलिटी आउट। एंड थैंकफुली मेरा मैंने जहाँ फ्लाइट कमांड करी थी वो धमपुर में। वी वर फ्लाइंग इन एंटायर जम्मू area along the line of control, Punch, Wagra, Rajouri, and all that. And then when I became a CO, then I was in Kashmir Valley, and Kashmir Valley, including Jammu region, पूरा नीचे Rajouri अखनूर तक, right, starting from गुरेज से गुरेज केरन सरा। तो वहाँ पे बहुत ही दुर्गम इलाके हैं। हमारे ट्रूप्स बहुत ही दुर्गम जगहों पे बैठे हुए हैं और उनको किसी भी हालत में सपोर्ट पहुंचाना, चाहे वो राशंस उनको देना है या उनको मूव करना है जस्ट फॉर मूवमेंट, और या कहीं कैजुअलिटी हो गई है उसको उठाना है और हॉस्पिटल लेकर के आना है, वर्किंग अगेंस्ट द एलिमेंट्स, वेदर ठीक नहीं है, ये सारी चीजें मतलब मैंने सीखा कि दैट कंपैशन एंड प्रोफेशनलिज्म, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न कि आपको एक प्रोफेशनल होना एट ऑल टाइम्स 24/7 बहुत जरूरी है अगर आप एक पायलट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई। yes sir, exactly sir, and I would agree on this कि आर्मी एविएशन ही एक आखिरी उम्मीद होती है, जैसे सियाचिन पे हो गया या फिर जो हाइल्टी एरियाज हैं जहाँ पे कि ट्रक्स वगैरह नहीं जा सकते, तो वहाँ पे केवल हेलीकॉप्टर का ही सहारा है कि राशन भी जाएगा, तेल भी जाएगा, सब कुछ हेलीकॉप्टर से जाएगा. एंड देन आर्मी एविएशन वर्क्स एज अ बैकबोन देयर. And I एब्सोल्युटली। really salute the pilots of Army Aviation. Many of my friends are into Army Aviation. They joined IMA and then they went into join flying. And then when I talked to them, I got to know how harsh terrain is there. क्योंकि सर वहाँ हेलीकॉप्टर भी मतलब फ्लाई करना इज अ वेरी वेरी लाइक बहुत तगड़ा चैलेंज है सर. यस यस, बिकॉज एयर इज बिकॉज वेरी एयर इज वेरी एयर थिन. इज वेरी रेयर। यस, एयर इज वेरी रेयर, तो आपके कंट्रोल्स भी स्लॉपी हो जाते हैं। आप कंट्रोल इनपुट देते हैं वो ठीक से जहाज लेता नहीं है, प्लस इंजन इज गैस्पिंग फॉर एयर आउट देयर। सो वहाँ पे काफी सारे क्रैशेस हो चुके हैं बट नॉट स्टैंडिंग, फ्लाइंग बहुत अच्छी चल रही है। एयरफोर्स वाले भी फ्लाई करते हैं, आर्मी वाले भी, एंड हेलीकॉप्टर इज द बैकबोन। एंड मैंने भी वहाँ पे एज एग्जामिनर बहुत सारी लैंडिंग्स करी हैं और मैंने देखा है कि किस तरीके से ट्रूप्स रहते हैं और एक एक हेलीकॉप्टर को कैसे वो किस किस नजरों से देखते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है तो मतलब जैसे उनकी उनकी केवल चिट्ठियां ले जाओ या बिकॉज वहां पे फोन वोन तो काम करती नहीं है। वहाँ गुड ओल्ड लेटर आज भी 2023 में चल रहे हैं। सो उनकी चिट्ठियां ले जाओ, एक सिंपल जेरिकन ऑफ केरोसिन ले जाओ उनकी हीटिंग के लिए, क्योंकि वहां पे वेट भी ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है। एक हेलीकॉप्टर में 30-40 किलो, कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है 20 किलो 15 किलो इतना ही लेकर के एक पूरी सॉटी जाती है। बट वो भी उन लोगों के लिए बहुत होता है। सो इट इज अ वेरी बिग बून फॉर देम दैट हेलीकॉप्टर पायलट्स आर ऑपरेटिंग। Our army and army officers like Colonel Amit sir and then like all the aviators, there is a massive respect to all of you. I really salute them. Whatever these guys are doing, they are keeping the country safe, going beyond the call of duty, going against all the odds. So that is very amazing to learn. And then this मैं चाहूंगा जो भी बच्चे इस सेशन को देखे या पॉडकास्ट को देखे उसको शेयर जरूर करना यार. उन लोगों तक पहुंचाना जिनको देख के इंस्पायर हम कर सकते हैं सर की जर्नी के साथ. Sir, what would be your final message to the kids who aspire to join the armed forces as an officer or who want to become army aviators as like you? Okay, so my final message to them is
that go to your NDA exam or your NDA exam जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। उसमें कभी भी मतलब जब भी कोई एग्जाम दो, चाहे जैसा भी हो, जब भी हो, आपको कभी भी बाद में वापस आके नहीं लगना चाहिए कि यार मैं 1 घंटा और पढ़ लेता या कुछ कर लेता। अपना बिल्कुल एफर्ट आपने छोड़ना नहीं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद में जब आप खास करके इसके लिए जाते हैं अपनी क्या कहते हैं SSB के लिए, दैट इज अ टाइम दैट यू शुड बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड। जस्ट मुझे मुझे याद है कि हम लोग जब गए थे तो हमारे कमांडेंट ने RMC में हमें यही बोला था कि बी ओपन, डोंट थिंक कि वो क्या सोच रहा है, GTO क्या देख रहा है और ये हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि GTO ऐसे देख रहा था, मैं सोच भी रहा था, बट ही हैड सेड जस्ट गो विद एन ओपन माइंड। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ यू ट्राई टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स, अगर आपका कैरेक्टर कुछ और है और आप पोर्ट्रे कुछ और करेंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे, और ऐसे लोगों को वो लोग फेल करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इट इज लाइक दे आर ट्राइंग टू शाइन अ टॉर्च ऑन योर पर्सनैलिटी फ्रॉम ऑल साइड्स, इधर से भी, ऑल साइड्स दे आर एबल टू सी यू, so you actually cannot hide. So be yourself. And all types of people are there in the army. ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के लोग हैं कि SSB में पास होते हैं तो एक ही टाइप का कैरेक्टर है। So don't get too worried. And I'm sure you'll pass. And be professional, be hardworking, and that is the key to success. और यहाँ पे जैसे सर ने बोला, इन चीजों को होपफुली तुम लोग इम्बाइब करोगे अपने अंदर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा बिफोर आई रैप अप दिस सेशन, एंड देन हाँ, इसका पॉडकास्ट नंबर 2 भी आएगा। अमित सर के साथ अभी और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी है। वी विल डेफिनेटली कम विद द पॉडकास्ट 2, जहाँ पे हम Wait, wait, wait. सर की सेकंड इनिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। मैं सबको आइडिया देता हूँ। सर अभी आर्मी से ही हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड देन ही इज आउट ऑफ द आर्मी नाउ। तो सर ने अभी स्टार्ट किया है, बिकॉज जो भी उनकी स्किल सेट है वो तो शेयर करना है ना बच्चों के साथ। सर ने स्काईवाइज एविएशन को फॉर्म किया है। स्काईवाइज बेसिकली विल बी गाइडिंग पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बिकम पायलट्स इन सिविल वर्ल्ड। तो उनके जो भी ग्राउंड सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट एक अगर आप लुक आउट कर रहे हो एक जेन्युइन और ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए, तो कर्नल अमित सर इज द पर्सन होम यू कैन लुक अप टू। और आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द पूरा सोशल इन सब कुछ, तो डोंट वरी। आपको किसी को भी इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन फ्लाइंग, आपके अगर अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, आप एयरफोर्स में नहीं जा पाए, आर्मी में नहीं जा पाए, यू डू रीच आउट टू अस, रीच आउट टू स्काईवाइज। आई विल टैग सर को, और उस पेज को भी मैं टैग कर दूंगा। आप वहां पे जाओ, चेक आउट द कंटेंट, एंड हमें बताओ आपके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। देन वी विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग अ करियर आउट ऑफ फ्लाइंग। एविएशन इज बूमिंग लाइक क्रेजी। अभी बहुत ज्यादा जॉब्स आने वाली हैं। सर भी इस पे एग्री करेंगे सर, कि अभी बहुत ज्यादा Yes, मार्केट exactly. ओपन हो चुका है। Yes, स्काई वाइज के बारे में yes. थोड़ा सा कुछ बच्चों को हिंट दो, क्योंकि आप बस हिंट दो अभी, फिर हम उस पर डेडिकेटेड Okay. एक सेशन करने वाले हैं बहुत जल्द। Okay. ठीक है, तो मैं क्योंकि इतने साल से इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, 2008 में बना था मैं, 15 साल, फिर एग्जामिनर एंड सारी इंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज वगैरह बना रहा, तो मेरे मेरे ब्लड में मेंटरशिप काफ़ी है। मतलब मैं मेंटर लोगों को करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आर्मी में इसके आगे जब भी मैं सीनियर ऑफिसर अगर बन जाऊंगा तो वो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमने स्काईवाइज एविएशन खोला है चंडीगढ़ में। मेरे एक पार्टनर है, उनके साथ में हम दोनों आर्मी एविएशन के ही हैं। एंड वी हैव डन आवर हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस, बाहर का जो सिविल पायलट लाइसेंस होता है, तो उसकी जो स्टडीज़ हैं और उसका जो पूरा करियर गाइडेंस है वो हम करते हैं। हमने पंचकुला में खोला हुआ है स्काईवाइज एविएशन। तो जो यहाँ के बच्चे हैं या इवन बाहर के, even if they don't want to join but they want to know, they can ask us anytime and we will let them know. As Shivam said, we are only giving a hint. We will come back with more about this later. So thank you very much for that. आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट ऑन दिस, कि सर आपको उसमें बताएंगे कि कैसे सिविल एविएशन में आप अपना करियर बना सकते हो। ये एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री हो चुकी है आज की डेट में जिसमें बहुत वेरी वेरी प्रोस्पेरिंग लाइफ है, लाइफ स्टाइल इज वेरी गुड। एंड देन इफ यू हैव मेंटर्स लाइक कर्नल अमित सर, तो डेफिनेटली आप उसमें सेल थ्रू कर लोगे इजीली। स्काई वाइज के बारे में मेरा एक पॉडकास्ट नंबर 2 आएगा बहुत जल्दी, वी विल प्लान इट आउट। और आई विल टैग इन द डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया लिंक्स दे दूंगा, डू चेक आउट। इंक्वायरी फॉर्म फिल करना, टीम विल कनेक्ट विद यू, एंड देन इसके बारे में हम और भी बातें आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। एंड इतना Thank you सारा very much, टाइम, Shivam. रियली ग्रेटफुल टू यू सर। Yeah, thank you and Jayant, and all the best to all the children who are wanting to join India. I'm sure they'll succeed. All the best to them. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। Thank you. Thank you.